Some people may also have the thought कि अगर मुझे ज़्यादा पैसा आ गया तो मैं आलसी हो जाऊंगा, मैं बहुत घमंडी हो जाऊंगा, या मैं स्पिरिचुअल नहीं रहूंगा। अगर किसी को इस टाइप के थॉट्स है तो उसको भी इमेजिन करिए आपके अंदर से वो नष्ट होके निकल रहे हैं। So it's a very materialistic topic on a spiritual discourse. So it'll be exciting to understand money in terms of spirituality today. That's the topic for our today's session. If you have the book from which we are going to study today, you can open it. It's called again Golden Lotus Sutras, Achieve the Impossible. अगर आपके पास ये बुक है तो आप खोल के रख सकते हैं। We're going to take the 5th chapter in this, which is money. All right. So now money is a very important part of our day-to-day life, right? It's the most essential thing that we all need to survive in every area. मतलब हर चीज में मनी तो जरूरत ही है। तो इसको स्पिरिचुअलाइज कैसे किया जाए? हाउ डू इंक्रीज योर मनी बट इन अ वे विच इज वेरी होलिस्टिक। आप कैसे होलिस्टिकली अच्छी तरीके से और प्रोस्पेरिटी अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं लाइफ में? How does this happen, and what should be your attitude towards money? This is all in this chapter. So let us go through it step by step. इसमें से शायद आपको कुछ ऐसी चीजें जानने मिलेगी जिससे अप्लाई करने से you will realize that you attract more and more abundance in your life in a way where even others are benefited. So money which is not just for your own self but also beneficial to others. We've already heard this, I think, in our traditions, in our culture, in especially in a country like India, जहाँ पे हमें बताया जाता है ना कि सात्विक धन होना चाहिए। सात्विक धन क्या होता है वो कुछ इस टीचिंग्स के साथ बहुत रिलेट करेगा। So let us go ahead with it. I'll read and I will explain. Okay. So on money. Money is concretized energy. Money is power. Money is a tool to be used by you. Money allows you to manifest the will to do good. So मास्टर जॉब सबसे पहले लाइन कहते हैं मनी इज कॉन्क्रेटाइज्ड एनर्जी। मतलब क्या कहते हैं? वो बोलते हैं वो एक टाइप की एनर्जी है, पावर है एक टाइप का। और कैसा पावर? कॉन्क्रेटाइज्ड। कॉन्क्रेटाइज्ड मतलब जो चीज फिजिकल है। एनर्जी हम क्या बोलते हैं? एनर्जी सिर्फ देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, बट जब वो फिजिकलाइज हो जाती है, कॉन्क्रीट बन जाती है, तो उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो मास्टर कहते हैं मनी ऐसा ही एक पावर है, एक एनर्जी है जो आप यूज कर सकते हैं। कहाँ? it allows you to manifest the will to do good. What is will to do good? Means अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो उसके लिए समझो आपको किसी को डोनेशन देना है, आपको किसी की हेल्प करनी है, आपको किसी को खाना देना है, कुछ भी देना है, दवाई देनी है, सब चीज के लिए क्या लगेगा? मनी लगेगा। लगेगा कि नहीं? सो मनी गिव्स यू द पावर टू हेल्प अदर्स। अभी काफी जन ऐसे कहते हैं कि पैसे तो अच्छी चीज नहीं होती है, पैसे, वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बॉलीवुड डायलॉग, पैसे तो मेरे पैरों की धूल है and so on and so forth, but actually it is none of that. We all need money even to do good and even to do service. लोगों की सेवा एंड मदद के लिए भी मनी ही लगता है। So that is what we have to respect money first of all. Money is like a woman. If you say you do not like her, she will go away. If you tell a woman I don't like you, will she stay with you? No, disappear. That applies to men also. So silently affirm to yourself. मास्टर क्या आपको टेक्निक दे रहा है? खुद को कहिए, खुद के साथ कहिए कि मनी फ्लोज टू मी लाइक अ रिवर, मनी रेन्स ऑन मी लाइक अ वाटरफॉल। दैट मीन्स इट इज वेरी डिजायरेबल। हाउ मेनी ऑफ यू फील, आस्क योरसेल्फ दैट ये लाइन बोलने में दिक्कत होगी, मन नहीं करेगा बोलने को। I'll repeat the lines. It is money flows to me like a river, money rains on me like a waterfall. Many of us find it very difficult to ask money explicitly. Ask means to pray for money, to pray for abundance, or to say something like that, that money flows to me. That means there is internal some obstacle. कुछ अपना understanding towards money में घोटाला है. Believe me, there is nothing wrong in asking for money. Asking means in praying for money, या money के बारे में इस तरह बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि it is
it is of great use in many ways. It doesn't mean that you're materialistic and that is all that you want. It just means कि आपको realistic understanding है for the importance of money in today's world. Okay, so we will do this right now. Close your eyes. मैं जो बोलूंगी आप दोहराइए मन में. एंड अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई सेकंड थॉट्स आ रहा है ये सेंटेंस बोलने का, तो वो हम निकालेंगे अपने सिस्टम से. ओके, हाउ आई विल गाइड यू. So close your eyes and repeat in your mind, or you can say loudly if you want to, your wish. Money flows to me like a river. Now imagine a river. Imagine lots of money flowing to you in that river. पैसों की river है and it is coming to you. It is at your disposal. आप जब चाहो तब वो river आपके सामने आ जाएगी और वहां से money आपको मिल जाएगा. We have the power to choose to ask. There is God within us. So if you believe in it, if you feel you are worth it, it will come. If you doubt it, it will not come. When I say it will come, मतलब सच की रिवर नहीं आ जाएगी, but इसका मतलब ये है कि जब भी आपको जरूरत होगी तभी पैसा आ जाएगा. Also now say in your mind, money rains on me like a waterfall. Imagine there is a waterfall of money, maybe gold coins or money, whatever you want to imagine it as. And imagine lots and lots of such gold coins pouring down. That means money is in abundance around you. How much ever you want, आपको जब चाहिए, जितना चाहिए, आपको मिल जाएगा. Just believe it. And if you're really visualizing that, I think you should be smiling by now. किसको कौन खुश नहीं होगा जब सच में बारिश होगी बरसात की, पैसों की, है ना? So now think in your mind, अगर कोई obstacle आ रहा है ये believe करने के लिए कि money can come so much, you can open your eyes for a moment or you can keep it closed as you like. मन में सोचिए ऐसा कौन सा thought आपके अंदर है, ऐसी कौन सी belief, एक मान्यता खुद के बारे में या खुद के जीवन के बारे में ऐसी है आपके अंदर जो आपको ये बिलीव करने से रोकता है कि पैसा आ सकता है, जब चाहे तब आ सकता है और जितना चाहिए मुझे उतना मिल जाएगा लाइफ में. I'll give you an example. किसी किसी को ये थॉट आ सकता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे तो कर्म ही खराब है, मेरा तो बैड लक ही बहुत ज्यादा बैड लक है. इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग थॉट आ सकते हैं. या किसी को ये मन में आ सकता है मुझे चाहिए ही नहीं पैसा, क्यों पता नहीं, बट नहीं चाहिए. ऐसे भी अजीब अजीब थॉट्स कभी कभी हमारे अंदर होते हैं जिसके बारे में हम खुद वाकिफ नहीं होते हैं. तो ऐसा कोई भी थॉट अगर आपके अंदर आ रहा है एज ऑफ नाउ, यू कैन क्लोज योर आइज एंड थिंक व्हाट इज योर ऑब्स्टेकल. क्यों पैसा नहीं आ सकता जितना चाहिए जब चाहिए? आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड. इफ आई नीड इट, गॉड इज ऑलवेज देयर टू सेंड इट टू मी. So if I don't believe it, what is that obstacle thought? Imagine this energy of this thought. ये thought जो आपके अंदर है, जो belief है, वो disintegrate हो रही है आपके अंदर से. वो energy नष्ट हो रही है और आपके अंदर से forever के लिए निकल रही है. You don't need it. We all are good enough to be happy and to be blessed in life, to have abundance, to have all our needs fulfilled. सो ऐसी कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है मनी के बारे में, इमेजिन वो एनर्जी आपके अंदर से नष्ट होके वो थॉट, वो बिलीव, वो खुद के बारे में मान्यता निकल रही है. एंड नाउ अगेन, इफ इट्स गॉन, टेक अ मिनट मोर इफ यू वांट. सम पीपल में ऑल्सो हैव द थॉट कि अगर मुझे ज़्यादा पैसा आ गया तो मैं आलसी हो जाऊंगा, मैं बहुत घमंडी हो जाऊंगा, या मैं स्पिरिचुअल नहीं रहूंगा. अगर किसी को इस टाइप के थॉट्स है तो उसको भी इमेजिन करिए आपके अंदर से वो नष्ट होके निकल रहे हैं. Just pray to God that God, thank you for disintegrating these unwanted thoughts from my system. I release them. I let go. इस तरह की कोई भी मान्यता जो मेरी ग्रोथ को, मेरी एबिलिटी टू डू गुड फॉर माई फैमिली, ऑल्सो माई एबिलिटी टू डू गुड फॉर अदर्स, ऐसी कोई भी नेगेटिव मान्यता मेरे अंदर है जो मुझे अच्छा काम करने से रोके, जो मुझे ज़्यादा पैसा कमाने से रोके, वो सब मान्यता को मैं नष्ट करके रिलीज कर देता हूँ.
I let go of all these negative thoughts completely at all levels. So be it. So be it. So it is. Now pray to God, keep your eyes closed, and with your hands open on your lap, we will repeat again what we said before. Money flows to me like a river. Imagine a river of money, all the money that you need. Imagine the salary that you want. Imagine the profit that you want in your business is coming to you. Money rains on me like a waterfall. जितना पैसा आपको जब ज़रूरत हो, आपकी फैमिली को ज़रूरत है, उतना आपको बिफोर टाइम मिल जाता है. You never have to wait for money. It just keeps coming, coming, coming. And whatever money you get, out of that you spend a lot of money even for donations, for helping people, to live a good life. कोई भी आपके पास ज़रूरतमंद पैसे के लिए आए, कुछ नीड के लिए आए, तो आपको किसी को ना कहने की ज़रूरत नहीं है. सबको दे सकते हैं आप, इतना पैसा है आपके पास. Say lots of thanks to God, to Teacher Master Chua Kuksui for teaching us this, and any other great gurus you believe in. Give thanks to all the higher beings for giving you so much of abundance. Say thank you, thank you, thank you. Take a deep breath and return to your body. Gently open your eyes. Wasn't it simple? Sometimes there are really simple thoughts that obstruct us from for growing in life, for succeeding. And what meditation helps you to do? What all these sessions help us to do? What closing your eyes, sitting peacefully helps you to do? To realize कि वो कौन से thoughts है जो मेरे obstacle है मेरे life में. Sometimes we are, or most of the times, we are our biggest enemy. So आपको जो भी area in your life में कोई problem है, उसके बारे में आप सेम ऐसा कर सकते हैं. सोचो मन में मेरे अंदर क्या है जो अच्छाई आने से रोक रहा है. My doubts, my limitations, my thought forms, my beliefs, उसको इस तरह निकाल दो. Those who have learned pranic healing, psychotherapy workshop, आपको white board technique भी सिखाया गया है. That is even more powerful than the way we are disintegrate. हम जिस तरह disintegrate कर रहे हैं एनर्जी को अभी अपने अंदर की, उसको करने की पावरफुल टेक्निक है व्हाइट बोर्ड टेक्निक. तो अपने साइकोथेरेपी सीखा है तो आप, मैं जब ये गाइड करती हूँ या आप अकेले करते हैं तो वो करिए. जिन्होंने अर्हाटिक योगा सीखा हुआ है प्राणिक हीलिंग में, उसके अंदर ब्लू ट्रायंगल सिखाया जाता है. वो भी एक क्लेंसिंग टेक्निक है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज उसमें अभी जो आप जो निकाल रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं एनर्जी जो आपको नहीं चाहिए, ब्लू ट्रायंगल में इतनी ताकत है कि वो पास्ट लाइफ्स के भी, अगर आपके अंदर कुछ इस तरह से आप बोलते हैं ना संस्कार लेके आते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो पास्ट लाइफ के भी संस्कार अपने साथ आते हैं. इसीलिए हम एक पर्टिकुलर टाइप के होते हैं बचपन से, हमारी एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है. व्हाई ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट? बिकॉज वी ऑल ब्रिंग संस्कार फ्रॉम द पास्ट लाइफ. तो ब्लू ट्रायंगल में वो भी निकल जाता है. ऑफकोर्स रेगुलर करने से, नथिंग इज अ वन नाइट जॉब, बट रेगुलर करने से वी ऑल हैव सीन ह्यूज डिफरेंस. तो आपने जहाँ तक जो सीखा है वो वाली टेक्निक्स अप्लाई करिए एंड मेक दिस मोर पावरफुल. अगर आपने कुछ नहीं सीखा है, नो प्रॉब्लम, मैंने अभी जो सिखाया उतना करेंगे तो भी काम आगे बढ़ेगा. ओके, लेट अस गो अहेड. The secret of making money in the stock market is in allowing the other guy to make money. मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सुना था. जब सुना तो मैं थोड़ी देर तक सोच रही थी कि what is master trying to tell? What is he telling? स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो क्या करना है आपको? You have to allow the other person also to make money. If you want to make money, you must let other people make money. I think I was so impressed by my teacher once again when I read this. वो क्या कह रहे हैं मतलब? How many of you actually invest in share market here? You can type yes in the chat so I will know. So थोड़ा बहुत भी अगर करते हैं तो. So if you do, हम जनरली क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कि मुझे सबसे सस्ते में शेयर खरीदना है, जब भी एकदम भाव गिरे तो तभी मुझे खरीदना है, एंड जो पीक पे आए ना तभी ही मैं बेचूं. मुझे सबसे लोएस्ट भाव पे मिले और सबसे हाईएस्ट भाव पे मैं बेचूं. हम सब ऐसा ही सोचते हैं. हमको लगता है ये लॉजिकल है ना, बट लॉजिक माइट बी राइट, बट कार्मिकली व्हाट वी आर इनडायरेक्टली प्रेइंग इज दैट जब मैं सबसे सस्ते भाव से खरीदूं, मतलब जिसने बेचा उसको तो लॉस हुआ ना, उसने सबसे सस्ते में उसने निकालना पड़ा शेयर.
मतलब उसकी कॉस्टिंग से भी कम होगा शायद, सस्ते में सस्ता। एंड वो क्या कर रहा है, जब मैं बेचूं तो मुझे सबसे हाईएस्ट प्राइस मिले। अगर मुझे हाईएस्ट प्राइस मिला, दैट मीन्स जिसने मुझसे खरीदा उसको तो लॉस में ही बेचना पड़ेगा ना, मुझसे हाईयर प्राइस तो नहीं मिल रहा है उसको, बिकॉज आई गॉट द हाईएस्ट प्राइस। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स मार्केट, आपको थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू एम फॉर कि आई गेट अ गुड प्रॉफिट, कि मुझे मेरे शेयर्स पे अच्छी प्रॉफिट मिल जाए। जरूरी नहीं है कि मैं सबसे सस्ते में सस्ता खरीदूं और सबसे महंगा बेचूं। This is indirectly a message to the universe. I want others also to earn, not just me. Getting the point? Karmically, it will allow you to earn more. And what is very important? Karma. What you get is based on what your karma is. So if you've understood what I'm saying, it's a bit complicated. But अगर समझ में आया है तो please next time से सिर्फ attitude में change लाना है. Okay? Just your attitude will make the difference. Okay, so with that, the next thing that Master says is also about attitude. Your attitude reflects your financial condition. In Taoism, it is stated that you can gauge poor people by the things they will not do, and you can gauge rich people by how they spend and use their money. बेसिकली आपकी थिंकिंग, आपके एटीट्यूड, हर चीज़ में नहीं नहीं मुझे बहुत महंगा पड़ता है, मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, ये तो बहुत महंगा है, वो एक अगर अपना सिस्टम बैठ गया है, महंगा महंगा पड़ता है, नहीं नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है। यू विल सी सम पीपल रिपीटेडली टेलिंग द सेम लाइन, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, मतलब अंदर ही बैठ गया है कि मेरे पास इनफ नहीं है, इसको निकालना है। हाउ एल्स कैन यू से द सेम थिंग? आप ये कह सकते हैं कि अभी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या मे बी राइट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू इन्वेस्ट मनी ईयर। ये भी सेम ही बताता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मतलब काफ़ी रीजंस हो सकते हैं ना राइट टाइम के, कि पैसा इनफ अभी नहीं है, या देयर आर अदर प्रायोरिटीज़, या मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, वट एवर, बट आई डोंट हैव इनफ मनी। हम लोग को तो हमेशा कमी होती है, हमारे पास कहाँ उतना पैसा। ऐसे डायलॉग्स मनी के बारे में मत कहिए, वो आपके माइंड को प्रोग्राम करता जाता है दैट यू डोंट हैव इनफ, एंड व्हाट मैसेज यू गिव टू द यूनिवर्स दैट कम्स बैक, वही मल्टीप्लाई होके आता है। इट इज योर वाइब्रेशंस विच आर रेप्लिकेटिंग थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। दैट इज वाई सम पीपल नेवर फाइंड इनफ मनी इन लाइफ। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो से, जब भी आपको कुछ अच्छा लगे और आपको खरीदना है या कुछ आपको मनी चाहिए, तो यू कैन से नो, आई एम श्योर वन डे, लाइक अभी नहीं बट आई एम श्योर थोड़े टाइम में आई विल बी एबल टू बाय दिस, या तो आई एम श्योर मनी विल कम, या आई नो मनी इज ऑन द वे, so in some time I'm sure I'll be able to buy it, maybe not right now, but थोड़े टाइम में कर लूंगा। This is still a positive attitude towards money, a realistic but yet a positive attitude. It's not like I don't have enough. Are you getting the difference? This you have to be aware, daily छोटी छोटी चीज़ों में awareness रखनी है कि मैं क्या बोल रही हूँ। Sometimes you're telling a lie to somebody else, or you're just telling somebody else, but आपका mind भी program हो रहा है उस lie से, उस झूठ से। So choose your words wisely. Okay, that is the meaning of your attitude towards money. Avoid a big overhead or excessive expenses. Avoid financial risks. Ask yourself, if something goes wrong, can I handle that risk? Some people don't plan their money well. That is another problem. क्यों abundance नहीं है? Because they do not plan it well. So master क्या कहते हैं, कोई भी action लो, उसके पहले उसके risk को भी evaluate कर लो। खुद को पूछ लो, क्या मैं ये risk handle कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तभी उसमें जाओ। फिर जाने के बाद there is no turning back, no? So plan well. Can you have wealth and prosperity without using your head? No, you cannot. You have to apply your mind, no? Knowing how to budget is very important. In general, try to be debt free. Are you understanding? These are simple sentences, so I'm not going deeply in this. Debts बने उतना उधारी नहीं करो, जितना हो आपके पास हो उतना स्पेंड करो, जितना हो जल्दी आपके डेट्स दे दो, कंप्लीट कर दो। Debt will always keep you in a poverty conscious attitude. Debt मतलब उधार, आपने किसी से पैसे लिए हैं, रिटर्न नहीं किए हैं, आपको लग रहा है अरे वाह मेरे को तो अभी तक मैंने दिया ही नहीं है, पकड़ के रखा है, बट एक्चुअली इट इज, आप सबसे बड़ा नुकसान खुद का है, आपका फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? स्पेशली कोई कोई ऐसे भी होती है कंडीशन जब आप दे सकते हो पर फिर भी नहीं दिया है,
जुगाड़ करके पैसा आप लौटा सकते हो, फिर भी नहीं दिया है, इससे क्या होता है, मेंटली यू आर टेलिंग योर सेल्फ आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास कम है, मैं गरीब हूं, एंड दिस प्रोग्राम विल कीप यू पुअर. सो कर्मा नाउ इज वेरी स्मार्ट, इट कम्स बैक टू अस गोल घूम के. तो अगर हमें लग रहा है मैं किसी का फायदा ले रही हूँ या ले रहा हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट. You are being damaged. So try to give back the money, the debts that you have taken as fast as possible. ज़्यादा उधारी ना रखे, because mentally constantly वो आपको गरीबी का या कम है इसका एहसास करवा रहा है. And हमें इसकी ज़रूरत नहीं है लाइफ में. Alright? Okay. When you become careless with money, it means the basic chakra is not as strong and as healthy as it should be. Okay, now there are some things which are connected to the chakra. If you have done your psychotherapy class, प्राणिक healing में आपको चक्रा का कौन से चक्रा stands for what energy आपको पता चलता है, तो इसलिए this I will not be able to discuss right now. The lower chakras are the anchors in your life. Your output in life is only as good as your chakras. The condition of your chakras affects your prosperity. Get pranic healing. मास्टर कह रहे प्राणिक हीलिंग करवा लो खुद पे. क्यों? क्योंकि आपके चक्रास पे आपके लाइफ के कंडीशन डिपेंड करेंगे. तो हीलिंग से आप अपना लाइफ का इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. इधर इफ यू हैव लर्नड इट, स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ. इफ यू हैव लर्न साइकोथेरेपी, स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ फॉर रिमूविंग पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, फीलिंग ऑफ लैक. ये सब आपको साइकोथेरेपी क्लास में सिखाते हैं ऑफ हाउ टू रिमूव सर्टेन इमोशंस. तो यू हैव टू अप्लाई दैट ऑन योरसेल्फ. ओके. If you want millions of dollars, give and share wisely. You must have good karma. मास्टर कहते हैं कि अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो ज़्यादा डोनेशन करो, क्योंकि गुड कर्मा ज़रूरी है. पैसा अगर आपको चाहिए ज़्यादा लाइफ में, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो उसके लिए गुड कर्मा ज़रूरी है. एंड गुड कर्मा कैसे बनेगा? शेयर एंड केयर. इफ़ यू गिव यू गेट. If you do not save and invest, there are fewer channels for your good karma to manifest. मास्टर चौहा क्या कहते हैं कि अगर आप बहुत सारा डोनेशन समझो आप करते हो, गुड कर्मा बहुत बनाया है, आप बहुत सेवा करते हो, दान करते हो, सब करते हो, तो फिर इन्वेस्ट भी करो कहीं जाके. आपके जो पैसे हैं, वेल्थ है, उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपने गुड कर्मा बहुत बना के रखा है. नाउ द गॉड एंड द लॉर्ड्स ऑफ कर्मा आर वेटिंग टू गिव यू बैक, टू गिव यू मनी, टू गिव यू प्रॉफिट. बट कैसे देंगे प्रॉफिट? आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे प्रॉफिट देंगे ना वो आपको. तो इसलिए वो कहते हैं गुड कर्मा भी बनाओ, फिर साथ में कहीं इन्वेस्ट करो, ताकि एवेन्यू बने, रास्ते खुले आपको देने के लिए. बिकॉज द हायर बीइंग्स आर वेटिंग टू गिव यू नाउ. आर यू गेटिंग इट? कुछ चीजें तो मैं भी जब पढ़ रही थी, आई वाज लाइक यार ऐसे तो सोचा ही नहीं था कि गुड कर्मा तो जनरेट हो रहा है, पर आएगा किधर से? आई विल हैव टू डू समथिंग फ्रॉम वेयर इट कैन कम. नो, सो स्मॉल थिंग्स, बट मेक नोट and buy this book if you don't have all of this. There are so many such small books. कुछ नहीं तो ऐसे चलते फिरते ट्रैवलिंग में कहीं पे भी पढ़ सकते हो. You will learn a lot of things and you will get it from the foundation office. So कहीं पे भी मिल जाएगा. If you want to get rid of someone, lend them money and they will hide from you. समझ में आया? मास्टर बीच में जोक्स भी मारते हैं. उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो किसी से पीछा छुड़ाना, तो उनको पैसे उधार इस पे दे दो, तो वो फिर वापस दिखाई नहीं देंगे आपको. Most people don't want to return back the money, so he's telling कि उधारी दे दो तो वापस नहीं मिलेंगे. Okay, if you want to inhale, you have to exhale first. Within giving are the seeds of prosperity. In tithing, you must decree that the good karma will come back to you and your family many times. Now, inhale and exhale सबको पता है ना. आप जब भी सांस लेते हो तभी तो सांस छोड़ सकते हो. मैं आपको बोलूँ सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, पर आप सांस लेंगे नहीं. ये सांस बहू वाली सांस नहीं है. हाँ, सांस भरने वाली सांस है, इनहेल. सो मैं आपको बोलूँगी इनहेल, तभी तो आप एक्सहेल कर पाओगे ना. इस तरह दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. ओनली जब आप कुछ दो तो कुछ मिलता है. अगर आपको चाहिए कि प्लांट उगे, तो पहले उसके अंदर सीड डालना पड़ता है. आप बोलेंगे मैं सीड्स वीड्स नहीं डालूंगी, मुझे सीधा ट्री चाहिए, तो कोई नहीं देगा आपको. कुछ भी नहीं, कोई नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है. उसी तरह इफ यू वांट मनी इन योर लाइफ, इफ यू वांट प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, यू हैव टू डोनेट. इफ यू हैव मोर प्रॉब्लम ऑफ मनी, more donate.
सो आई टेल दिस टू पीपल. व्हेन आई हर्ड दिस इवन आई वाज सरप्राइज कि मास्टर क्या कह रहे हैं, मतलब कैसे पॉसिबल है ना, जिसको पैसा नहीं है वो किधर से डोनेट करेगा. बट मास्टर चुआ सेज दैट व्हेन यू डोनेट, अभी आप ध्यान से सुनना है ये चीज, जब आप पैसा देते हो तो क्या होता है, आपके अच्छे कर्म बनते हैं, बराबर है, क्योंकि आपने किसी का भला किया, किसको काम आए, तो क्या मिलता है आपको, वो सीड है आपके, हाँ वो सीड है, तो आपको क्या मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा. कौन सा फ्रूट, आपको भी ज्यादा पैसा मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगा. लेकिन अगर आपको इस लाइफ में ऑलरेडी बहुत पैसों की कमी है, जो चाहिए बेसिक नीड्स की कमी है, दैट मीन्स आपके पास्ट लाइफ से ही आप प्रोस्पेरिटी के अच्छे कर्म नहीं लाए हैं, आप मनी के अच्छे कर्म नहीं लाए हैं, आपको कम पड़ रहा है. तो ऐसे इंसान को तो और देना पड़ेगा ना, कि पहले इस लाइफ को तो बैलेंस करो, नीड्स को तो बैलेंस करने जितना मनी बने, फिर और प्रोस्पेरिटी आ सकती है. जबकि जिनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है मनी का, जिनको सुख है, सब है, उनको थोड़ा देने से जो आएगा उससे अधिक मिलेगा, एक्सेस मिलेगा. बट जिसको तो बेसिक ही नहीं है उसको तो और देना पड़ेगा ना, क्योंकि पास्ट लाइफ से बैकलॉग ला रहे हैं. समझ में आ रहा है? That is why Master says you need to give more. Now, how will you give more? So there are ways of donating. Let's see आगे उन्होंने क्या बोला है. But at least some part of your income should be donated. इनकम नहीं कमा रहे लेडीज, आपको घर खर्च के लिए दिया जा रहा है पैसा, तो उसमें से 10% निकाल के साइड में रखो. थोड़ा कटौती हम सब कर सकते हैं, राइट? ऑल ऑफ अस कैन डू दैट इफ यू वांट टू. तो थोड़ा मेरा है ही नहीं समझ के साइड में रखना है, उससे दान करना है. अगर आपको, आप ओल्ड हो, आपके कुछ सेविंग्स है, तो घर खर्च का आप जो भी निकालते हो उसमें से, तो उसमें से थोड़ा साइड में रख के देते जाओ. वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पेंड इन ऑन योर सेल्फ, उसमें से थोड़ा दे दो. थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो. योर टारगेट शुड बी 10% इन वन मंथ. वॉट एवर यू स्पेंड ऑन योर सेल्फ, उसका 10% यू शुड बी गिविंग. दिस इज फॉर पीपल हु हैव लेस मनी. हाँ, दोज हु आर नॉट शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब आपको पैसे का कमी नहीं है, तो आपके इनकम का 10% आपको दान करना है. समझ में आया? 10%. इफ यू आर अर्निंग 20,000 अ मंथ, यू गिव 2,000 नेट, आपके हाथ में जो भी आ रहा है. इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, आपका बिजनेस आपको जो नेट प्रॉफिट हाथ में देता है टू टेक होम, वो उसमें से आप 10% दान करो. ट्राई डूइंग दिस. आई डोंट नो वन सिंगल पर्सन जिसने ये किया हो और उसका इनकम मल्टीप्लाई ना हुआ हो. आई हैव टोल्ड दिस टू पीपल हु आर जॉबलेस ऑल्सो, हु नॉट अर्निंग एनीथिंग, एंड वो थोड़ा भी दान करना स्टार्ट करते हैं, इमीडिएटली कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है उनकी लाइफ में. जॉब लग जाती है, मनी आ जाता है कहीं से, समथिंग हैपेंस, बट लाइक दे आर टेकन केयर ऑफ. व्हाई? बिकॉज दे स्टार्टेड गिविंग. सो द लॉ ऑफ कर्मा विल गिव बैक. Start doing that, okay, and do it regularly. In a short time you will see huge difference. Okay, let us go ahead. Tithing is not an expense. Tithing is a karmic investment. मतलब मास्टर कहते हैं टाइथ मीन्स 10, टाइथिंग मीन्स 10% गिविंग. तो 10% गिविंग जो है उसको मास्टर कहते हैं कि ये खर्चा नहीं है आपका, ये आपके कर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपको ही वापस आने वाला है. आपको लग रहा है आप दे रहे हो, बट एक्चुअली मल्टीप्लाई होके वापस आने वाला है. फार्मर सोचेगा मैंने इतना सीड्स डाल दिया फार्म में तो मेरा खर्चा हो गया, तो चलेगा क्या? वो उसका 100 सीड उसको 10,000 बन के आने वाला है ना. उसी तरह आपका इन्वेस्टमेंट है टाइथिंग. सो गिव एंड दिल खोल के यू गिव. Tithing out of gratitude and to improve your spiritual connection, the size of your spiritual cord. Now some things you'll understand if you've done the pranic healing workshop. So spiritual cord वगैरह उसमें सिखाया जाता है, but gratitude से दीजिए, thankful होके दीजिए. जबरदस्ती देने को दे बोला है इसलिए अरे बोला है तो भी दे देते हैं, ऐसे मत दो. जब दे ही रहे हो तो दिल से दो कि किसी का फायदा होगा, ये सोच के देना. Giving is not only an act of kindness, it is also a smart thing to do. नाउ मास्टर ने क्यों लिखा है, कई बार मास्टर खास करके इंडिया में जब पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं ऐसा कि काइंडनेस इज ग्रेट, मतलब आपको काइंडनेस, आपका दयालु हो आप इसीलिए देते हैं, बराबर है. बट वो बोलते हैं कि वो सिर्फ दयालुपन नहीं, वो स्मार्ट एक्ट भी है. मतलब हार्ट एंड माइंड एक्चुअली दोनों का एप्लीकेशन होता है जब आप दान कर रहे हो. एक्चुअली देयर इज एन एंटायर साइंस ऑफ गिविंग. देयर इज वन वर्कशॉप इन प्राणिक हीलिंग, इसको क्रिया शक्ति वर्कशॉप बोलते हैं. क्रिया शक्ति में सो इट इज actually taken by very few acharyas all over the world.
तो वो जब भी सिखाते हैं तो उसमें पूरा मनी एज अ साइंस सिखाता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में, बट कैसे देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली मल्टीप्लाई होके आपके पास बेस्ट बेनिफिट में आ सके, मैक्सिमम लोगों को भी बेनिफिट मिले एंड मैक्सिमम आपको भी आए। ये कैसे करना चाहिए वो पूरा सिखाते हैं। एंड ऑल्सो क्रिया शक्ति टॉक्स अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर अबंडेंस, बहुत मतलब डीपली सिखाया है उसमें। पहले मास्टर ने उसको ओपन रखा था सबके लिए वो वर्कशॉप, लाइक प्राणिक हीलिंग सीखा है तो आप सीख सकते हो, बेसिक भी सीखा है तो। बट बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि टू सम एक्सटेंट आपका बॉडी प्यूरिफाई हो जाए, आपका सोल प्यूरिफाई हो जाए, आपके ऑरा चक्रास प्यूरिफाई हो जाए, उसके बाद ये कोर्स सिखाना चाहिए। इसीलिए उन तो ज़्यादा फायदा है सीखने वाले को। इसीलिए उन्होंने फिर अर्हाटिक योगा एक बेसिक नेसेसिटी रखा, उसके बाद ही आप ये कोर्स कर सकते हैं। सो बट मोस्टली वंस और ट्वाइस इन अ ईयर होता है बॉम्बे में, अभी तो कोविड की वजह से नथिंग इज हैपनिंग, बट आप सीख सकते हो बाद में। इट्स अ वेरी नाइस वर्कशॉप। So, okay, let's go ahead. So I will not be able to take the entire chapter today because we'll have to also do the meditations. Let me see just a couple of more things. Giving is a science, tithing is spiritualized materialism. वो कहते हैं टाइथिंग क्या है, एक टाइप का मटीरियलिज्म है ना। मनी इज समथिंग चाह, मटीरियल चीजों की चाह है। प्रोस्पेरिटी क्या है, आपको कुछ मटीरियल चीज चाहिए, उसकी चाह है। लेकिन स्पिरिचुअलाइज्ड मटीरियलिज्म है, मतलब डोनेशन करना स्पिरिचुअलिटी भी है एंड मटीरियलिज्म भी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस लेक्चर के कि दो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मनी, you will realize that by the time we start discussing more, it actually is also becoming spirituality, है ना? Because it is power, money is power in today's day and we have to accept it, we cannot deny it. आज आप यहाँ बैठे हैं, ये सुन रहे हैं मेरे से, मैं सुना रही हूँ क्योंकि I could buy this book, I have a laptop, I have Wi-Fi connection, एंड आप लोगों के पास भी वो सब है, इसलिए आप सुन रहे हो और मैं बता पा रही हूँ। और मैंने कोर्सेज किए, ये सब सीखा, सालों से प्रैक्टिस करते हैं तो हम आपको दे पा रहे हैं। So value the importance of money. There is nothing wrong in having lots and lots of money. Only one thing you have to keep in mind कि मैं अच्छे sources से money कमाऊं and जो भी मेरे पास abundance आए उससे मैं share भी करूं बहुत सारे लोगों के साथ। When you have the right attitude for money, it will keep coming. Clear? And never criticize people who have a lot of money. If you feel people have a lot of money, no. Now I'll be keeping this book aside because there's just one couple of things I want to tell you. Whenever you feel that people have a lot of money, कि उनके पास बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर काफ़ी लोगों को jealousy होती है ना, कि अरे इसके पास तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास उतना नहीं है. And then like we discussed, you want to pull them down, कि कुछ गलत करते होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे, इसीलिए उनके पास ऐसा है. Don't find faults in them. If you find faults in people who have money, it will not be given to you. What do, you bless them. You send them lots of blessings and say, oh, I'm very happy. Wow, अच्छा है ना, इनके पास बहुत सारा है. They are having a good life. I hope they're helping more people. God is kind to them. And then pray and bless that may their abundance be there like that. And उनको सद्बुद्धि भी आए कि वो अच्छे कामों में यूज करें उनके पैसे. अगर दिए ही है भगवान ने तो भला करे लोगों का, और किसी को परेशान करके ना कमाए. इस तरह के blessings दे दो उनको. And then cut the cord. And then whenever you think of them, you again bless them. If you bless them instead of feeling jealous about them, money will come to you also. But if you will throw jealousy towards them, if you feel कि क्यों इनके पास है, कैसे है, इतना होना ही नहीं चाहिए, देखो बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नेगेटिव थॉट्स डाला तो जेलसी की वजह से that will not come back to you. That is the law. This applies to, by the way, everything. Huh? You see happy couple, you see happy people, you see people having some nice house, people have nice things, they are successful. Give more blessings to them. अच्छा चलो उन्होंने कुछ कार्मिकली अच्छा किया होगा तभी मिलता है. Seeds के बगैर plant नहीं उगता. So they have put the seeds, this life or past life we don't know. But send them blessings. Send them okay, भले अच्छा रहे उनका, बस सद्बुद्धि आए कि अच्छे कामों में यूज करे. Finish. एंड देन यू प्रे मेरे भी कहीं से सीड्स आ जाए और मैं भी सीड्स डालना स्टार्ट कर दूँ. प्रे फॉर योर सेल्फ. नो व्हाई थिंक नेगेटिव अबाउट एनीबडी. इतना फ्री टाइम ही नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव सोचे लोगों के बारे में. ऑल राइट.
So with that, I'm going to finish this topic for today. I hope you've learned. I hope this will help you to change your attitude towards money, towards prosperity, towards abundance, towards success, all of that. Always pray for more success and remember to pray for to share. All right.